Hello students, once again I welcome you all in my new video, and this video is about animal tissue. Okay students, and animal tissue, before this we have done plant tissue. Okay, and in the beginning first lecture of the tissue, chapter tissue, we have discussed about the definition of the tissue. So what is the tissue? Just revise yourself. Okay, try to recall. The group of cells having similar origin, structure and function, okay, is known as tissue. And tissue combine together and they form the organ. And many organs combine together and they form the organ system. And organ system combine together and they form the individual. Okay, so the group of the cells having similar origin, structure and function is called tissue. Okay, so here topic is the animal tissue. So animal tissue, the tissue which are present in animal are known as animal tissue. Very simple. And the tissue which are present in plant, okay, are known as plant tissue. Okay, there is nothing new. So animal tissue having 3 points which are very important. First is the animal tissues are complex and specialized. It is written in comparison to the plant tissue. Plant tissue are also so complex, but more complex than plant tissues. One tissue perform one function specifically. Okay, means their function is very specific. Okay, now these tissues are divided into 4 groups. This animal tissue divided into 4 groups, but in the case of plant tissue they were divided into 2: meristematic tissue and permanent tissues. Try to recall meristematic tissue and permanent tissue. But here 4 types of tissues are there in the animal case, and this is applicable for all animals. It is all, I know this is written especially for the animal, especially for human beings. Okay, but यही चारों ही सब में लगभग होते हैं according to their organizational level. ठीक है, so start with the first is the epithelial tissue, second is the muscular tissue, third is the connective tissue, and fourth is the nervous tissue. Okay students, so epithelial tissue, that epi means covering. Epi means covering, means that the tissue which makes the covering. Suppose this is a person. Okay, so ये जो स्किन बनेगी, इसकी स्किन, इट इज मेड अप ऑफ द एपिथेलियल टिश्यूज. सपोज यह लीवर, तो लीवर का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है, यहाँ से बाइलोब रहता है. तो ऊपर की जो कवरिंग है बच्चों ने, ये दैट इज ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज. अब इसी पर्सन का ट्रैकिया हो गया. ट्रैकिया का जो इनर लाइनिंग होगी, दिस लाइनिंग, ठीक है बच्चों, ये लाइनिंग, दिस लाइनिंग इज मेड अप ऑफ द एपिथेलियस मेकिंग द कवरिंग. इनसाइड से भी तो ये ना ल्यूमेन है, ये क्या है? ल्यूमेन है. ये अंदर से भी प्रोटेक्शन चाहिए इसको, नहीं जो खाएंगे पिएंगे सब टिश्यू में चलता, टिश्यू रगड़ता जाएगा वो. ओके, तो ये सब बातें हो गई. किडनी देखा जाए तो किडनी के भी ऊपर की जो होती है, ये होती है. ओके बच्चों, तो ये क्या होगी? एपी मींस होती है कवरिंग. ऐसे प्लांट, इन द केस ऑफ प्लांट यू ऑल हैव बीन टॉट बाय मीन एपिडर्मिस. एपी इज द वर्ड दैट इज द प्रेफिक्स. ओके, प्रेफिक्स that means making the outer covering. Okay, so epithelial tissue forms the protective layer of body or organ. Got the point? इसके टाइप्स कितने होते हैं? इसका टाइप देखो यहाँ पे, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू,
देन क्यूबाइडल, क्यूब के शेप की होती हैं। थर्ड कॉलमनर, पिलर लाइक स्ट्रक्चर होती है। लास्ट वन इज द सिलिएटेड कॉलमनर, मींस जब कॉलमनर में क्या लग जाए, सिलिया, ऐसे कॉलमनर है और यहाँ पे क्या लगे बच्चों, सिलिया लग जाए, ठीक है, फॉर द मूवमेंट। सो दैट काइंड ऑफ columnar is called ciliated columnar epithelial tissue. We will discuss it. Okay, we will discuss all four one by one in detail. Okay, अभी ये नेक्स्ट टॉपिक में उठाएंगे इसी को। ओके, नेक्स्ट इज द मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर रिलेटेड मींस द वर्ड रिलेटेड विद मसल्स, द वर्ड रिलेटेड विद मसल्स। अब बॉडी में देखो यहाँ क्या बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, यहाँ ग्लूटस मसल है, सब मसल है ना ये। तो ये सब बॉडी आप देखो ना, व्हेन यू थिंक ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ द मसल, सब मसल के बने हुए हैं। आंखों के जो होता है ना, जो आपको दिखती आइरिस, दैट इज मेड अप ऑफ द मसल। ओके, तो सारा बॉडी का जो एक फ्रेमवर्क है जो मूवमेंट कराता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, दैट इज मेड अप ऑफ द मस्कुलर टिश्यू, दैट मीन्स मसल। ओके, so help in locomotion and movement and heart pumping. Yes, this is I have written especially, क्योंकि बहुत जगह नहीं लिखा रहता ये, because heart is also a kind of muscular structure. One more thing, locomotion तो आप समझ रहे होंगे, locomotion तो ऐसे चलना, movement this is hand movements, ठीक है, मैं भी पढ़ाते रहता हूँ, मेरा भी हैंड मूवमेंट चलता रहता है, ठीक है ना। और प्लांट्स में भी होता है ये मूवमेंट, कैसे, वो लोकोमोशन तो नहीं करते बट दे डू द मूवमेंट। फॉर एग्जांपल देखा होगा आपने ककुम्बर, या आपने देखा होगा मनी प्लांट, जहां लाइट जिधर से आती वही चला जाता वो, ठीक है। टू सम एक्सटेंट वी कैन से दैट इज द मूवमेंट, ठीक है। सो इट इज अ थ्री टाइप्स, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक। वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड कार्डियक। सो वॉलंटरी मीन्स होता है विद द विल, अकॉर्डिंग टू विल। विल मीन्स इच्छा कर सकते हैं इन हिंदी, ठीक है। व्हेनेवर आई थिंक टू डू दिस वन आई विल डू, लेकिन मैं ना चाहूं तब भी मैं उसी को करूं जो मैं ना चाहता हूं, दैट इज द इनवॉलंटरी, दैट इज द इनवॉलंटरी, ठीक है। ओके बच्चों, तो जैसे वॉलंटरी को और भी नाम कहता है स्ट्रेट मसल, क्या कहता है, स्ट्रेट मसल। तो स्ट्रेट मसल होती है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर में स्ट्रिप्स आते हैं, इनका स्ट्रक्चर तो होता है इस तरह होता है, यहाँ पे ये स्ट्रिप्स होते हैं ऐसे, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्रिप्ड मसल और वी कैन से स्ट्राइप मसल। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, दैट इज नेक्स्ट इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी इज आल्सो कॉल्ड अनस्ट्रिप्ड, क्यों, क्योंकि इसमें कोई ऐसी बैंड्स नहीं होती है, इसका स्ट्रक्चर दिखेंगे तो ऐसा होता है, स्पैंडल शेप, वन न्यूक्लियस। इसमें कई सारे न्यूक्लियस होते हैं इसकी सेल्स में, इसके क्या होता है, एक न्यूक्लियस होती है। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड स्मूथ, आल्सो कॉल्ड स्मूथ, ठीक है। स्मूथ होते हैं, इनका जो टेक्सचर होता है वो स्मूथ होता है। फॉर एग्जांपल हमारी एलिमेंट्री कैनाल इज होल मेड अप ऑफ द स्मूथ मसल, स्मूथ मसल की बनी है। यूरिनरी ब्लैडर, ये सारे के सारे स्मूथ मसल होते हैं और दे नेवर गेट टायर्ड, ये थक जाते हैं, वॉलंटरी होते हैं, ये थक जाते हैं बट दे डोंट गेट टायर्ड, दैट मींस द स्मूथ मसल। फेमस नेम इज द स्ट्राइड मसल एंड स्मूथ मसल। बट इफ देयर इज कंफ्यूजन जस्ट ट्राई टू लर्न लाइक दिस, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। द एंटोनिम्स ऑफ द वॉलंटरी इज इनवॉलंटरी, इस तरह के चलता है। फिर क्या होता है ये कार्डियक मसल। कार्डियक मसल इज द कंपोजिशन ऑफ दीज टू मसल्स। जो पहले सुन रहे हो सोच रहे हैं अरे सर ये क्या, यस, दोनों का ही मिक्सचर होता है ये, हैविंग द वन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड वन ऑफ द फंक्शन। एक ही स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी यहाँ होती है कार्डियक मसल में, और एक क्या होती है कि फंक्शनल प्रॉपर्टी। एंड कार्डियक मसल इज प्रेजेंट इनटू द हार्ट, जो हमारा हार्ट होता है ना 300 ग्राम का, ओके, दैट इज मेड ऑफ द
कार्डियक मसल, ठीक है। और ये कार्डियक मसल में स्ट्रक्चर जो होगा ये किसका होगा, वॉलंटरी मसल का। इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, स्ट्रक्चर इज अ वॉलंटरी मसल एंड फंक्शनली इट इज सिमिलर टू इनवॉलंटरी या वी कैन से स्मूथ मसल। तो हार्ट की जो स्ट्रक्चर होगी बनावट मसल्स की, दैट इज आप वॉलंटरी एंड फंक्शन इज आप इनवॉलंटरी। बच्चों मैं एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूं इसलिए कि आपको चीजें लर्न हो जाए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू and the difference of this virtual class, video class and offline class, ठीक है। कुछ लोग सोच रहे होंगे बार बार रिपीट कर रहे हैं, इसलिए कि आपको चीजें लर्न हो जाए, ठीक है ना। चलिए तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको इन कमिंग वीडियोस। नेक्स्ट इज द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू देखो, दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन। Connective name is suggesting you that having the function of connections, कनेक्ट करता है। जैसे इंटरनेट ने क्या किया, हमको आपको कनेक्ट कर दिया। रोड होती है, यहां से यहां जाना है, अगर बीच में जो है कोई जो है वैली है, तो क्या आ गया, फ्लाइट से चले गए। तो ये फ्लाइट क्या है, कनेक्ट कर दिया दोनों को, यहां से वहां कर रहे हैं। पहाड़ों को काट के पता चला कि रोड बना देंगे, ऐसे 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 ये ऐसे करते हो गए, दूर होता लंबी पड़ जाती है सब। तो कनेक्शंस का काम करते हैं बिटवीन टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज। दो तरह के टिश्यू बीच में क्या करता है, ये कनेक्शन करता है, ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। सो कनेक्ट टू आर मोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज। एग्जांपल इज द ब्लड, एग्जांपल इज द ब्लड एंड ब्लड इज द सॉफ्टेस्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बॉडी में सबसे सॉफ्ट जो फ्लूइड होता है दैट इज द ब्लड। एंड दिस इज ऑल्सो स्पेशल, ऐसा है जो कि वो ऐसा टिश्यू जो लिक्विड फॉर्म में होता है। दिस इज व्हाई देयर इज वर्ड स्पेशलाइज्ड या वी कैन से स्पेशल। ओके, नेक्स्ट इज द, देखो ब्लड क्या करता है, कनेक्ट करता है पूरी बॉडी की टिश्यू को। पता चला वही ब्लड लंग्स में जा रहा है, वही ब्लड ब्रेन में जा रहा है, तो कनेक्शन हुआ बच्चों ना। किडनी में भी गया, एलिमेंट्री कैनाल में भी गया, गॉल ब्लैडर में भी गया, so there is a connection. This is the bone. बोन को देखो, अब यहां से देखो इस पाम को यहां से इसने इसके जोड़ दिया, तो कनेक्शन इज देयर, इज कनेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज द कार्टिलेज। यस, कार्टिलेज इज आल्सो कनेक्टिंग। अब कार्टिलेज क्या होती है, देखो हम लोग पढ़ेंगे इसको ना। इस चारों में का सबसे इंटरेस्टिंग, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज द कनेक्टिव टिश्यू। मजा आ जाएगा पढ़ोगे तो तुम, ठीक है। तो जैसे बोन बनी होती है वो किस प्रोटीन बनी होती है, ऑसिन प्रोटीन की, और कार्टिलेज बनी होती है कॉन्ड्रिन प्रोटीन की। ईयर देख रहे हो ना, ये टिप ऑफ द नोज, ये सब किसकी बनी है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन की बनी है। ओके बच्चों, नोज की हो गई, ये हो गया, ठीक है, ये सब कॉन्ड्रिन प्रोटीन। द टिप ऑफ द ज्वाइंट्स, वो भी किसकी बनी होती है, कवरिंग होती है, वही घिस जाता है तो दर्द होता है, दैट इज ऑफ कॉन्ड्रिन प्रोटीन। नेक्स्ट इज द टेंडन। टेंडन एंड लिगामेंट बोथ हैविंग अपोजिट फंक्शन। जैसे लिगामेंट क्या है, BULB, बोन टू बोन। बोन टू बोन कौन जोड़ता है, लिगामेंट, ठीक है। टेंडन बोन टू मसल, डायग्राम बना समझाएंगे। और यही टेंडन होती है, जैसे किसी का हाथ मान लो कि क्रैक कर गया, तो कहते हैं कि आप हाथ फिंगर्स मूवमेंट कीप मूविंग योर फिंगर्स, क्योंकि यहाँ टेंडन होती है बच्चों, यहाँ पे जो कि बोन को मसल से जोड़ती है। मसल के पास ऐसा कुछ नहीं है कि सीधे, जैसे मान लो ये मसल है, ये अब बोन में सीधे थोड़ा जुड़ जाएगा, ऐसे देखो, इस देर ग्लू है नहीं, कोई ग्लू तो है नहीं यहाँ पे कि चिपका देगी, तो क्या होती है, ऐसे ये मसल हो गई, तो मसल तो फ्लेक्सिबल है ही है, लेकिन ये बोन है, मान लो ऐसे मसल है। तो बच्चों यहाँ पे जो ये जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल सपोज मान लो ये मेडिसिन का है, ये जो है स्ट्रक्चर ना, दैट इज अ टेंडन। और टेंडन्स आर फ्लेक्सिबल, अगर उनके अंदर मूवमेंट होता रहेगा तो फ्लेक्सिबल रहेंगे।
नहीं तो अगर 1-2 महीने तक इसको इसी तरह रखा जाए तो क्या ये सॉलिड, ये काफी कह सकते हैं कि सॉलिड हो जाते हैं, इनइलास्टिक हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाथों को भी थोड़ा थोड़ा ऐसे करते रहिएगा, फिंगर्स को करते रहिएगा। यहाँ भी होते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से रख के अगर उंगली को एक्सरसाइज करेंगे ना, आपको लगेगा कुछ समथिंग इज रनिंग इन द बिटवीन द दिस बोन एंड दिस बोन। ठीक है, चलिए ये सब पढ़ाएंगे वहां पे तो खूब अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे टेंडन हो गया, ये बोन टू मसल, बोन टू बोन, ये बल्ब याद करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द एडिपोज टिश्यू। यस, एडिपोज टिश्यू कंटेन्स द सेल एडिपोसाइट। कौन सी सेल होती है बच्चों यहाँ पे? एडिपोसाइट। बोथ आर प्रेजेंट, सॉरी, दिस इज प्रेजेंट इन बोथ केसेस, मेल आल्सो इन फीमेल आल्सो, बट फीमेल्स में आफ्टर 13 years 14 years actually it is present at the, especially at the we can say thoracic region। thoracic region में होता है। देखो ये पूरा ये नेक हो गया, हेड हो गया, ये हाथ से यहाँ thoracic region होता है। ठीक है, वैसे प्रेजेंट तो पूरी होती है, स्किन के नीचे होती है। ठीक है, और इंसुलेशन का काम करती है ठंड के मौसम में, बॉडी का हीट बाहर कम से कम जाता है। बट इन द केस ऑफ मेल एंड फीमेल प्रेजेंट स्पेशली एट देयर thoracic region। ठीक है, बट फंक्शन इज व्हाट? स्टोरेज ऑफ द फैट को स्टोर करते हैं। ठीक है, इट इज फंक्शन टू द फीमेल, नॉट इनटू द मेल। फीमेल में ज्यादा फंक्शन होते हैं, मेल में ये नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करना है? ये तो ये हो गया एडिपोज टिश्यू की बात। ठीक है, नेक्स्ट इज द लास्ट वन इज द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, इट मेक्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो बने होते हैं, ये नर्वस टिश्यू बने होते हैं। और नर्वस टिश्यू की जो यूनिट होती है, वी कैन से नर्व सेल। नर्व सेल, ठीक है, तो ये नर्व सेल क्या करते हैं? ये नर्व सेल एक तरह का डेटा को स्टोर करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग देते हैं। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो यहां से लेके यहां तक पूरा होता है ये। ओके बच्चों, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे। सबसे लंबी, द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द न्यूरॉन्स, और वी कैन से नर्व सेल। न्यूरॉन और नर्व सेल दोनों एक होते हैं। सो बच्चों चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और आप लोग जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं पूरा इसको कॉपी में नोट करेंगे। नोट करने के बाद क्या करेंगे? दे विल हैव टू सेंड द फोटोज टू माय व्हाट्सएप। ओके, एवरी डे। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।